Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple. And here is your book, Computer Connect. Let's start chapter number 6, Introduction to Spreadsheet. Let's move on to the introduction of the chapter. So a spreadsheet is a computer program. Spreadsheet एक computer program है जो हमें help करता है organize करने में, store करने में और analyze करने में data को एक tabular form में, table के form में. Let's move on to the learning objectives of the chapter. So after learning this chapter, students will be able to know, they will know about spreadsheet program, they will know about starting Excel, workbook and worksheet, components of a workbook, moving around the spreadsheet, entering of data, performing calculations, saving a workbook, opening a saved workbook. So these all things we are going to learn in this chapter. Let's move on to the conversation between two friends, Hina and her friend Meera. So Hina says, "Hi Meera, today we are going to learn about MS Excel." आज हम MS Excel के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मीरा कहती है, "Hey Hina, I'm not sure. Is it something fun? क्या ये कुछ मज़ेदार है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता." तो हिना ने कहा, "Well, it's actually a computer program. ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है वर्क करने में नंबर और डेटा के साथ. You can use it to make list, calculate things and create chart." यहाँ पे हम इससे जो है यूज़ कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए, चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, चार्ट को बनाने के लिए. तो मीरा ने कहा, "ओह दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. कैन यू शो मी हाउ टू यूज़ इट? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कैसे इसे यूज़ करना है?" सो हिना ने कहा, "ऑफ कोर्स मीरा, आई वुड लव टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विथ MS Excel. मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूंगी MS Excel को कैसे काम करते हैं इसमें ये सिखाने के लिए." So let's move on to spreadsheet program. So spreadsheet is basically an application program. ये एक application program होता है जो हमें help करता है स्टोर करने में डेटा को रोज में और कॉलम्स में, मीन्स tabular form में. It can also be used to sort, calculate and manipulate the data. इसे यूज कर सकते हैं हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए. Examples of spreadsheet applications available to us are, कुछ यहाँ पे examples दिए गए हैं spreadsheet applications के, जिसमें जो है examples है Google Sheets, LibreOffice Calc, Microsoft Excel and Open Office. ये कुछ examples हैं इसके. तो इसमें हम ये जो है काम कर सकते हैं. We can enter, edit and save data in the spreadsheet application. हम यहाँ पे spreadsheet application में डेटा को एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं. We can also present the data in a graphical form. हम डेटा को graphical form में भी प्रेजेंट कर सकते हैं spreadsheet application को यूज कर सके. Now in this chapter we will learn about MS Excel. इस चैप्टर में हम MS Excel के बारे में पढ़ेंगे. Following is the window of MS Excel. ये है विंडो हमारे MS Excel की. Like other spreadsheet applications, दूसरे spreadsheet applications की तरह MS Excel जो है इसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे और रोज मिलेंगे. कॉलम्स जो है इन्हें जो है वर्टिकली और रोज को अरेंज किया जाता है हॉरिजॉन्टली. जो कॉलम्स है वो वर्टिकली आपको मिलेंगे, जो रोज हैं वो हॉरिजॉन्टली मिलेंगे. The rows and columns cross each other to form boxes. ये जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. डेटा इज एंटर्ड इन दीज सेल्स और इन सेल्स के अंदर ही हम डेटा को एंटर करते हैं. तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सेल. स्टार्टिंग एक्सेल इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. So we have to follow the given steps to create a worksheet in MS Excel. अगर हमें MS Excel में वर्कशीट को क्रिएट करना है तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. सो फर्स्ट वी हैव टू टाइप एक्सेल इन द सर्च बॉक्स. हमें एक्सेल को टाइप करना है सर्च बॉक्स में. अब वहाँ पे हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन, उसको हमें सेलेक्ट करना है. आफ्टर सेलेक्टिंग MS Excel, एक्सेल को सिलेक्ट करने के बाद एक नया स्प्रेडशीट फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे. ऐसी एक फाइल जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी. नाउ MS Excel विंडो. सो यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉलम्स एक्सेल में एंड दीज आर नेम्ड यूजिंग लेटर्स सच एज ABCD. यहाँ पे जो कॉलम्स है वो ABCD के नाम से मिलेंगे. कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D. Similarly
यहाँ पे हमें मिलेंगे रोज एंड दीज आर नेम्ड यूजिंग 1 2 3 4। तो ये है हमारे रोज 1 2 3 4, ये हमारे रोज मिलेंगे हमें यहाँ पे। अ सेल इज नेम्ड बाय इट्स कॉलम फॉलोड बाय इट्स रो नेम। अब जो सेल है उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, हम उसका जो है नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने A1 को सेलेक्ट किया तो A1 जो है हमारा जो है पहला सेल है। नाउ यहाँ पे जो A है वो कॉलम है और जो 1 है वो है रो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये हमारे सेल्स थे, रो हेडिंग्स थे एंड कॉलम के हेडिंग्स थे। फिर आता है हमारा नेम बॉक्स। अब हमने A2 को सिलेक्ट किया तो A2 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये है हमारी इनपुट लाइन, इसके ऊपर जो है क्या लिखा है, इसमें जो आप A2 में जो है कार लिखा है तो वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स क्या करता है, जो एक्टिव सेल है उसका नेम जो है डिस्प्ले करता है और जो इनपुट लाइन है वो डिस्प्ले करता है कंटेंट को, क्या कंटेंट है उस सेल में। इट कैन बी यूज फॉर एडिटिंग द कंटेंट ऑफ द सेल। इसे जो यूज किया जाता है जो सेल है उसके कंटेंट को एडिट करने के लिए। द माउस पॉइंटर अपीयर्स एज अ प्लस साइन इन एक्सेल। एक्सेल में जो माउस पॉइंटर है वो इस एक प्लस के साइन की तरह हमें दिखाई देता है। वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या होते हैं ये दोनों। सो वर्कबुक क्या है, व्हेन वी स्टार्ट MS एक्सेल, जैसे हम MS एक्सेल को स्टार्ट करते हैं अ न्यू स्प्रेडशीट इज क्रिएटेड, एक नया स्प्रेडशीट हमारे सामने आ जाता है। दिस स्प्रेडशीट कैन बी सेव्ड ऑन द कंप्यूटर एज अ फाइल, और इस स्प्रेडशीट को हम फाइल के रूप में अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। ये जो फाइल है इसे हम वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक क्या है, इट इज गिवन द नेम बुक 1 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे इसका जो नाम है वो बुक 1 आपको मिलेगा। ये जैसे आप इसे ओपन करेंगे बुक 1 के नाम से आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे जो नाम है ये हम चेंज कर सकते हैं जब हम सेव कर रहे होते हैं। कोई भी हम अपना जो भी नाम हम चाहें वो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वर्कशीट। वर्कशीट क्या है, वर्कबुक जो है जितने भी वर्कबुक होते हैं इनमें आप देख सकते हैं एक या उससे ज़्यादा आपको वर्कशीट मिलती हैं। सो ईच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ वर्कशीट, और इनमें से हर एक शीट को हम वर्कशीट कहते हैं MS एक्सेल में। तो ये आप देख सकते हैं शीट 1 है, ऐसे यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं न्यू शीट को अपनी वर्कबुक में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कबुक। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे वर्कबुक के। सो फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कबुक। ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हमारे वर्कबुक के। पहला आता है हमारा मेन्यू बार। ये जो है इसमें आपको जो है इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज विद अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे आपको मेन्यूज मिलेंगे, सब मेन्यूज मिलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और ये हमें एक्सेस देता है बेसिक कमांड्स का, जैसे कि फाइल, सेव एंड अदर थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी मेन्यू बार में। फिर आता है हमारा फॉर्मूला टूल बार। फॉर्मूला टूल बार में आपको मिलेगा नेम बॉक्स और इनपुट लाइन टेक्स्ट बॉक्स। ये है हमारा फॉर्मूला टूल बार। द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जो नेम बॉक्स है वो जो एक्टिव सेल है उसका नेम डिस्प्ले करता है। जैसे हमने D2 को यहाँ पे सिलेक्ट किया D2, एंड जो इनपुट लाइन है वो डिस्प्ले करता है कंटेंट। तो क्या कंटेंट है 6, तो वो कंटेंट यहाँ पे शो होगा। इट कैन बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। इसे हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट जो भी हमारे सेल का उसको एडिट करने के लिए। इन केस ऑफ अ कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू की बात करें। इट डिस्प्लेज अ फॉर्मूला दैट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन, और ये फॉर्मूला को डिस्प्ले करता है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉलम्स एंड रोज। सो वी नो दैट अ स्प्रेडशीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड और अ टेबल। हमें सबको पता है ये जो है टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में। नेक्स्ट इज कॉलम्स। सो दे आर अरेंज वर्टिकली, ये वर्टिकली अरेंज किए जाते हैं। ईच कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम हेडिंग। हर एक कॉलम को उसकी कॉलम हेडिंग से जाना जाता है। एंड ये जो नेम्स होते हैं ये लेटर्स से शुरू होते हैं ABCD। नेक्स्ट आते हैं रोज। सो ये जो है अरेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली, एंड ये जो रोज हैं इनके जो नंबर है उन्हें आइडेंटिफाई, इन्हें नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। रोज के जो नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और सो ऑन। फिर आता है सेल। सो ये जो सेल है ये बनता है रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से, एंड इसे ही सेल कहा जाता है। हम यहाँ पे डेटा को एंटर करते हैं सेल में, और हर एक सेल जो है उसका एक नाम होता है।
दिस इज फाउंड बाय इट्स कॉलम नेम फॉलोड बाय इट्स रो नेम। ये जो है नाम, ये पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, फिर रो के नाम को लिखा जाता है और फिर उस सेल का पूरा नाम बन जाता है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो फर्स्ट सेल है अपर लेफ्ट कॉर्नर में वो ए है, A1, तो यहाँ पे ए जो है कॉलम है और 1 जो है रो है। नेक्स्ट ये यू कैन सी द पिक्चर जहाँ पे आपको जो है रोज एंड कॉलम्स, ये सेल, ये सारी चीज़ें शो की जा रही हैं। नेक्स्ट इज एंटरिंग ऑफ डेटा। डेटा को हम एंटर कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन एंटर टेक्स्ट और नंबर डेटा इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम टेक्स्ट या फिर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वैल्यूज। इन सब को हम वैल्यूज भी बोलते हैं। सम टेक्स्ट वैल्यूज आर यूज टू डिस्क्राइब द डेटा इन द कॉलम और अ रो। कुछ जो है टेक्स्ट वैल्यूज जो दिए गए हैं डेटा के फॉर्म में कॉलम्स और रोज में, एंड दे आर कॉल्ड स्प्रेडशीट लेबल्स, और इन्हें हम स्प्रेडशीट लेबल्स कहते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे डेटा को एंटर करने के लिए। सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा सेल A1 पे। A1 सेल पे हमने क्लिक किया, अब उसमें जो है हमने टाइप किया कलर्स, फिर हमने प्रेस कर दिया एंटर। तो ऐसे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन एंटर नंबर डेटा इन द वर्कशीट। इसी तरीके से हम नंबर डेटा को भी एंटर कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। सो ये था तरीका कैसे हम जो डेटा को एंटर कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी। सो हियर एक्टिविटी 1 इज गिवन, यू हैव टू ओपन द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फिर आपको टाइप करना है आइटम्स इन द पेंसिल बॉक्स इन कॉलम ए ऑफ द स्प्रेडशीट। सो कॉलम ए जो है वहाँ पे पेंसिल बॉक्स के जो भी आइटम्स होते हैं उनके नाम टाइप करने हैं एंड काउंट करने हैं कि कितने आइटम्स आपने एंटर किए हैं कॉलम बी में। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कैसे हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं? तो वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन नंबर डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के नंबर डेटा में हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूलाज यूज़ करके, यूजिंग द कमांड्स, कमांड्स को यूज़ करके। तो पहला आता है यूजिंग फार्मूला। कैसे हम फार्मूला की मदद से इस काम को कर सकते हैं? सो इन एक्सेल एवरी फार्मूला बिगिंस विद इक्वल्स टू साइन। एक्सेल में जितने भी फार्मूला है वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, अगर हमें दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा इक्वल टू A1 प्लस B1। लेट्स लर्न टू क्रिएट अ फार्मूला टू ऐड 3 नंबर्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या फार्मूला बनता है। सो वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ऐड 3 नंबर्स। अब ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना होगा 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल की जो वर्कशीट है उसे ओपन करना होगा। फिर हमें जो वैल्यू है वो A1, B1 और C1 में ऐड करना होगा। तो हमने A1 में 10, B1 में 20 और C1 में 50 ऐड कर दिया है। फिर हमें प्रेस करना है एंटर की को। अब हमें क्या करना है, इनपुट लाइन पे जाना है एंड यहाँ जाके हमें जो है टाइप करना है नेम ऑफ द सेल्स। सेल के नाम को टाइप करना है जिसकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है और उनके साथ हमें प्लस का साइन लगाना है। सो हमने A1 प्लस B1 प्लस C1 कर दिया और फिर हम प्रेस कर देंगे एंटर। सो क्या हम देखेंगे, हम देखेंगे कि A1, B1 और C1 का जो भी आंसर है वो D1 में हमें शो हो रहा है। नेक्स्ट, अब हमने जो है ये भी सीख लिया कैसे फॉर्मूला को हमें यूज़ करना है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेविंग अ स्प्रेडशीट। कैसे हम स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट फाइल, वी नीड टू सेव इट। हम जो है स्प्रेडशीट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, हम उसे सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। सो वंस वी हैव सेव्ड अवर फाइल, जब हम एक बार अपनी फाइल को सेव कर देते हैं, वी कैन ओपन इट एनी टाइम फॉर मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन इट। हम उसे कभी भी ओपन कर सकते हैं किसी भी तरीके के चेंजेस उसमें करने के लिए। सो ये जो कुछ स्टेप्स दिए गए इससे हम सेव कर सकते हैं अपने स्प्रेडशीट को। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेव बटन पे। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें एक सेव एज डायलॉग बॉक्स में मिल रहा है। नाउ सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप लोकेशन को, यहाँ से एक नाम देना है अपनी फाइल को और फिर क्लिक कर देना है सेव बटन पे। तो इस तरीके से हमारी जो स्प्रेडशीट है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो द सेव ऑप्शन allows you to save a document in the same location। सेव ऑप्शन क्या करता है, हमें उसी लोकेशन में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने में हेल्प करता है सेव नाम के साथ। लेकिन जो सेव एज ऑप्शन है ये यूज़ किया जाता है सेव करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को एक दूसरे नाम के साथ किसी दूसरी जगह पे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
लेट्स मूव ऑन टू ओपनिंग अ सेव्ड स्प्रेडशीट. अब हमने सेव तो कर लिया, लेकिन उसे ओपन कैसे करना है ये सीखना अभी बाकी है. सो वी कैन वर्क विथ स्प्रेडशीट फाइल्स दैट आर ऑलरेडी सेव्ड. हम जो है सेव्ड स्प्रेडशीट फाइल के साथ काम कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर. वी कैन रीओपन द फाइल्स. हम फाइल्स को रीओपन कर सकते हैं और फिर जो भी चेंजेस हैं उन्हें हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना होगा ताकि हम ओपन कर सकें अपने स्प्रेडशीट को. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है फाइल ऑप्शन पे, फिर हमें जाना है ओपन ऑप्शन पे. नाउ यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी है अपनी स्प्रेडशीट को जो कि हमने सेव की है. रिसेंट वर्कबुक्स में आपको मिलेंगी और यू कैन ब्राउज अ डिज़ायर्ड शीट, या फिर हम जो भी शीट हमें चाहिए उसको हम ब्राउज कर सकते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स में से. तो इस तरीके से हम जो है अपने जो भी हमने फाइल सेव की है उसे ओपन कर सकते हैं. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रीबूट. सो स्प्रेडशीट क्या है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है स्टोर करने में डेटास को रोज और कॉलम्स में एक टैबुलर फॉर्म में. हम जो है क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डेटा को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में. एंड वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट द डेटा इन द ग्राफिकल फॉर्म. हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की मदद से. वी कैन एंटर टेक्स्ट और नंबर डेटा इन द स्प्रेडशीट. हम टेक्स्ट या फिर नंबर डेटा को हम जो है डाल सकते हैं अपने स्प्रेडशीट में. एक्सेल कैन ऑल्सो बी यूज टू सॉर्ट, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट डेटा. हम एक्सेल की मदद से सॉर्ट, कैलकुलेट और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को. ईच वर्कबुक कैन हैव मोर देन वन स्प्रेडशीट. जितने भी वर्कबुक है उसमें एक से ज़्यादा आपको स्प्रेडशीट मिल सकते हैं. एंड ईच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ वर्कशीट, और इन सब को हम वर्कशीट कहते हैं. वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस और नंबर डेटा. हम परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशंस को नंबर डेटा पे एक्सेल में फॉर्मूलाज और कमांड्स को यूज़ करके. इन एक्सेल एवरी फार्मूला बिगिंस विथ एन इक्वल टू साइन. और एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज हैं वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स गो. सो ए एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. So here the first one is a workbook can contain many worksheets in it. Second, in Excel every formula begins with an equal to sign. Third one, we can enter text or letters data in the spreadsheet. Fourth one, the formulas command allows us to calculate values in Excel. And the fifth one is a worksheet is used to store data in rows and columns. Next, let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is we cannot enter characters in the cell. This one is false. Second, we can do only addition in Excel. This is also false. Third, Excel is a spreadsheet program. Yes, true. Fourth one, a workbook can contain as many worksheets in it. Yes, true again. And the fifth one is rows are arranged vertically. This is false. So these are the answers. Now let's quickly move on to the next exercise, which is C exercise. Take the right answer. So here the first one is a workbook contains worksheets, spreadsheets, both 1 and 2, none of these. So here the correct answer is a workbook contains worksheets. Second, which of the following is a spreadsheet program? Calc, Excel, Google Sheet, all of the above. So here the correct answer is all of the above. Next, which of the following is not a column heading? A, O, A, F, none of these. So A, O is the correct answer over here. Fourth one, which key is used to move to the next cell in the same column of the worksheet? Tab, enter, space, shift. Enter is the correct answer. Fifth one, it is an example of combination of rows and columns. A, 2, B1, none of these. So B1 is the correct answer. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.